Hello everyone. On today's video section, we'll talk about the conversion of a given CFG to its equivalent PDA. Okay, that means हमें एक CFG दिया जाएगा और हमें उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के करस्पॉन्डिंग PDA को जनरेट करना है या PDA बनाना है या हमें CFG से PDA कन्वर्ट करना है. Okay, so for this we can follow an algorithm which defined it here as let G be a grammar which is defined with the help of 4 tuples. We know that. So G be a context free grammar or the CFG. We define M, which is the machine, as Q. With the 7 tuples, we know that to be used for defining a PDA, tau, delta, F, and Z naught. Okay, as Q as the Q naught, Q1, Q2 to be the set of states. F is the accepting state. Tau is the set of stack symbols. तो स्टैक के अंदर हम कौन कौन से सिंबल्स रखते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं और साथ ही साथ z नॉट आता है. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द tuples to be defined here, we know that q naught is the initial state. q naught जो है वो इनिशियल स्टेट होगी. बाकी इनपुट अल्फ़ाबेट्स as similar to the set of terminals. जो भी ग्रामर में टर्मिनल्स हैं वो आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे. ओके, और z naught, we know that the initial stack symbol. And for transitions, transition function to be defined here as we need to follow some of the rules for the transition function especially. Okay, and what are these rules? The very first rule is from the initial move of M is to place S, which is the starting symbol of the given grammar, on the stack and move to Q1. Okay, then the transition corresponding to that state, to the starting symbol corresponding to the required DFA, Q naught epsilon Z naught tends to Q1, and put that stack symbol or starting symbol onto the stack. Okay, so पहला जो हमारा इनिशियल मूव होता है PDA का वो ऐसा होता है जिसमें इनिशियल स्टेट पर विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिंबल मीन्स जो आपके टर्मिनल्स हैं, जो आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं,
हम उनमें से किसी को रीड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक के अंदर जो हमारे ग्रामर की स्टार्टिंग स्टेट है हम उसको पुश कर रहे हैं। ओके, और Q1 स्टेट पर हम ट्रांजिट कर जाएंगे। जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि now at Q1 state the transitions so at Q1 state the transition can be made as it is based on the following rules। अब कौन कौन से रूल्स हैं इसमें? जो पहला रूल है वो है फॉर every variable, that means for every a that belongs to the set of variables, transition at Q1 state for epsilon, and the stack symbol is that variable is equals to the Q1 state alpha, where this alpha is nothing but the production or the sentential form of this variable a. Okay, and the second rule is I'm writing it here. Second rule is for every terminal a that belongs to the set of input alphabets, the transition at Q1 state for that input alphabet and the stack symbol is similar to that alphabet is equals to the Q1 epsilon. Okay, so you can see here we are actually performing the push operation, and here we are performing the pop operation. ओके, सो जो 6 टपल्स हैं वो तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। ये हैं वो 6 टपल्स जो कि हम पीडीए जब हम बनाएंगे तो ग्रामर को हम जब बदलेंगे पीडीए के अंदर तो जो 6 टपल्स होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। और जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसके लिए आपको जो है इन रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें पहली स्टेट पर जो ट्रांजिशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हम जो स्टैक है उस स्टैक के अंदर हम पहला सिंबल जो है स्टार्टिंग सिंबल को रखेंगे। इसके बाद दूसरी स्टेट जो हमारी होगी जो कि Q1 स्टेट है उस पर हम बाकी बचे हुए वेरिएबल्स और टर्मिनल्स के लिए ट्रांजिशंस इस तरह से बनाएंगे। अगर वेरिएबल है तो हमें उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी उसके कह सकते हैं कि जो उसके प्रोडक्शन रूल्स हैं हम उनको पुश करेंगे, और कोई भी टर्मिनल है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो है टर्मिनल को स्टैक में से बाहर करेंगे और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, एंड द थर्ड ऑपरेशन इज द थर्ड स्टेप जो कि हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है, जो कि Q2 स्टेट है, उसके लिए एट एक्सेप्टिंग स्टेट transition at Q1 state epsilon z naught equals to, or we can say transits towards the accepting state which is Q2, and pop the last symbol which is present on the stack which is z naught and make that stack to be empty. Okay,
सो ये हम एक्सेप्टिंग स्टेट के लिए बना रहे हैं। तो ये हैं हमारे रूट्स, जो कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जब हम पीडीएफ में बदलते हैं तो हमें इस एल्गोरिदम, हम कह सकते हैं कि एक एल्गोरिदम है, या हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कन्वर्टिंग अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू इट्स इक्विवेलेंट पीडीएफ फॉर्म। ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन भी लाइक convert the given grammar CFG into PDA. Okay, the grammar productions are S tends to A oblique, क्वेश्चन लेते हैं। AS BSS SSB और SBS। तो ये हमें एक ग्रामर गिवन है, ये वेल नोन ग्रामर है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट जो हम पीडीए बना रहे हैं उस पीडीए को हम मान लेते हैं m। ठीक है, लेट पीडीए भी m, which is defined with the help of 7 tuples. And what are these 7 tuples? We have here as symbolically we can represent them as tau f and the last one is the transition function. तो ये वो 7 tuples हैं। अब अगर आप कोई भी पीडीए डिफाइन कर रहे हैं और अगर आप पीडीए को 7 टपल से डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक कंप्लीट पीडीए को डिफाइन कर दिया है। तो हम भी यहाँ पर पीडीए को ही डिफाइन कर रहे हैं। क्यों? क्यू इज नथिंग बट दी सेट ऑफ स्टेट्स। सो वी नो दैट जिस एल्गोरिदम को हम फॉलो कर रहे हैं उस एल्गोरिदम से जब भी आप कोई पीडीए बनाएंगे, एक्चुअली ये जो है पीडीए हम बनाते हैं ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ पीडीए हो जाता है। ओके, अगर हर वेरिएबल के लिए आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल्स हों उस केस में। सो इसमें जो है सिर्फ 3 ही स्टेट्स होती हैं ऑलवेज। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेट ऑफ स्टेट्स in our PDA. Q naught that we have taken here as the initial state of the PDA. Then next is the set of input alphabets which is equals to the terminals. Okay, and now we can see here in the given grammar the terminals are A and B only. So you can say A, B. Okay, and these are the input alphabets. ऑब्वियस ही बात है कि जो लैंग्वेज इस ग्रामर की होगी, जब भी आप किसी ग्रामर से पीडीएफ में बदल रहे होंगे तो जिस लैंग्वेज को ये सीएफजी रिप्रेजेंट कर रही होगी उसी लैंग्वेज के लिए पीडीए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग्स होंगी वो सेम अल्फाबेट से मिलकर बनेंगी। तो इस केस में जो टर्मिनल्स होंगे इस ग्रामर के वही इनपुट अल्फाबेट्स होंगे पीडीए के लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर एज द इनपुट द टर्मिनल्स, ओके, टू बी द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। नाउ द नेक्स्ट tuple is z naught. Okay, so z naught is nothing but the initial stack symbol. Initial stack symbol. Then the next is tau
So tau is the union of variables, the input alphabets, as well as the initial stack symbol. Okay, so it will be as per the given grammar, the set of variables s, क्योंकि हमारी अगर ग्रामर देखें तो ग्रामर में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल दिया विच इज एस। अगर हाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते तो वो सारे वेरिएबल्स भी यहाँ आ जाते हैं। यूनियन सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स, सो सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स वी हैव हियर एज ए बी, ओके, और आखिर में जेड नॉट। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये आपके स्टैक सिंबल्स कहलाएंगे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड स्टैक सिंबल्स। नाउ हम आते हैं अगले टपल पर, विच इज द एक्सेप्टिंग स्टेट और वी कैन से द फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर फाइनल स्टेट नहीं होगी क्योंकि जो पीडी हम बनाएंगे ये हमेशा इस एल्गोरिदम के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एम्प्टी स्टैक से बनाया है। ठीक है, ये एम्प्टी स्टैक से बनता है, इसीलिए एफ इज द एक्सेप्टिंग स्टेट एंड हियर वी हैव द एक्सेप्टिंग स्टेट एज Q2. Okay, so Q2 is nothing but the accepting state. So then अब आखिरी जो ट्रिपल आपके पास बचता है वो है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, सो यू कैन से द ट्रांजिशन फंक्शन कैन बी डिफाइंड हियर as the transition sequences. Now the transition function or the transition rules to be defined here with the help of a table. Okay, अब हम देखेंगे कि वो जो हमने एक्चुअल में जो एल्गोरिदम बनाई थी, जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस की है, उस एल्गोरिदम में जो स्टेप्स थे वो यहाँ पर अब हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, सो वी हैव अ टेबल हियर। Now the very first column is for the states, the second column is for the input symbols, third is for the stack symbols, and the last one is for the moves जो हम ट्रांजिशन में फॉलो अप करने वाले हैं। तो ये चार कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट Q0 से। सो Q0 के लिए जो हमने एल्गोरिदम देखी थी, आप देख सकते हैं Q0 स्टेट पर जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस की थी, दैट एल्गोरिदम सेज initial move of M is to place S on the stack and move to Q1. So and that transition to be represented with this form. So at Q0 state, for the without giving any input symbol, so in that case for the initially the input symbol is epsilon. Okay, stack symbol initially is Z0. आपका जो मूव है वो क्या है, Q1 स्टेट पर S को पुश करना। So we can write it here as we can move to the Q1 स्टेट, और जो हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल है जो कि S है हमारी गिवन ग्रामर के करस्पॉन्डिंग, तो हमें उसे पुश कर देना है। ठीक है, इनिशियल मूव जो है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा।
बस स्टार्टिंग सिंबल आपको ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामर में एस दिया है, ए दिया है, बी दिया है, जो भी दिया है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज the next move we can say, that is now at Q1 स्टेट। अब क्योंकि हम Q1 स्टेट पर आ गए हैं तो Q1 स्टेट पर आपका क्या मूव्स हो सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। क्या आप वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं या टर्मिनल के लिए लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल है, तो पहले हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल के लिए क्या मूव्स होंगे, और फिर हम बात करेंगे टर्मिनल्स के लिए क्या मूव होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल के लिए मूव क्या है, एट Q1 स्टेट विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल फॉर द वेरिएबल एप्सिलॉन, ओके, स्टैक सिंबल इज दैट वेरिएबल। तो इस केस में हमारा वेरिएबल क्या है, एस है, क्योंकि स्टैक में भी एस टॉप मोस्ट वेरिएबल है। आपको Q1 स्टेट पर ही रहना है, स्टेट चेंज नहीं करनी है, और इस वेरिएबल के जितने भी आपके राइट हैंड साइड पर प्रोडक्शन रूल्स हैं उन सभी को यहाँ पर वन बाय वन लिखते जाना है। सो इट टेंड्स टू अल्फा, अल्फा मीन्स द प्रोडक्शन रूल ऑफ ए, ओके, और उसको पुश करते जाना है स्टैक के अंदर। सो वी विल हैव दी प्रोडक्शंस। अब हमारे पास जो ग्रामर है उस ग्रामर में एक ही वेरिएबल है और उसके जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सारे वन बाय वन हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम एस को रिप्लेस करेंगे उसके पहले प्रोडक्शन से, विच इज ए, सो ए जेड नॉट। देन द नेक्स्ट इज, इट में भी पॉसिबिलिटी है कि एस की जगह पर हम ए एस भी रख सकते हैं, ए एस जेड नॉट, ओके। द थर्ड वन इज Q1 B double S, B double S, then SSB, so you can say Q1, that is S small b, or it may be SBS, so you can say Q1 with SBS। यानी कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्शन रूल्स हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम उन सभी प्रोडक्शंस को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने S को एक बार ए से रिप्लेस किया, फिर एस को ए एस से रिप्लेस किया, फिर एस को बी एस एस से रिप्लेस किया, ओके, जेड नॉट जेड नॉट जेड नॉट, तो ये तो रहेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब आपको क्या करना है, अगला जो रूल है वो किसके लिए है, टर्मिनल्स के लिए। यहाँ वेरिएबल्स खत्म हो गए, पहला वेरिएबल खत्म, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले रूल पर, विच इज फॉर टर्मिनल्स, एंड व्हाट इट सेज, फॉर एवरी टर्मिनल दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ टर्मिनल्स वी नीड टू राइट दिस रूल। कांस्टेंट रूल है। तो एट Q1 स्टेट पर अल्फ़ाबेट, अब हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं ए और बी, तो हम दोनों के लिए लिखेंगे वन बाय वन। सो फॉर द अल्फ़ाबेट ए विल हैव द अल्फ़ाबेट ए, स्टैक सिंबल भी क्या होना चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, बट हम हमारे पास जो स्टैक में सिंबल है हम उसे पॉप कर देंगे, ओके। सो ये हमारा एक रूल हो गया, क्लियर। So now again at Q1 state, for the next alphabet which is B, B के लिए लिखेंगे रूल, कुछ नहीं करना है, सेम रूल रहेगा, कोई चेंज नहीं, एज इट इज बिल्कुल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जब टर्मिनल्स भी खत्म हो जाएं तो अगला जो ट्रांजिशन रूल हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे किसके लिए, Q2 स्टेट के लिए, टू एक्स है ना, टू गेट द फाइनल और द एक्सेप्टिंग स्टेट। सो दैट इज Q1 स्टेट पर एप्सिलॉन इनपुट के लिए जब इनपुट्स खत्म हो जाएंगे और Z0 विल बी द स्टैक सिंबल,
In that case, we need to access this state. Okay. So you can see here this is what we called द ट्रांजिशन फंक्शन। तो हमने देखा कि कैसे हमने ये 6 टपल्स यहाँ डिफाइन करे थे और जो बचा हुआ हमारा 7वां टपल है, ओके, वो हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इस तरह से है। तो ये जो 6 टपल्स और ये जो 7वां टपल हमने यहाँ डिफाइन किया टेबुलर फॉर्म में, ये सब मिला के आपका पीडीए है। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। ये चेंज नहीं होना है, ये एज इट इज़ रहेगा। इनिशियल स्टेट चेंज नहीं होना है। जो भी टर्मिनल्स आपके ग्रामर में दिए हैं उन टर्मिनल्स को हम इनपुट अल्फ़ाबेट मान लेते हैं। इनिशियल स्टैक सिंबल ये भी एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं। स्टैक सिंबल्स ज़रूर बदलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ग्रामर में क्या क्या सिंबल्स दिए हैं। जो भी सिंबल्स दिए हैं पहले वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लीजिए, फिर जो टर्मिनल्स दिए हैं फिर टर्मिनल्स को इंक्लूड कर लीजिए और फिर आखिर में आपको Z0 को भी स्टैक में रखना है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स जितने भी दिए हैं ये सब और Z0 इन सबको मिलाकर हम जो है स्टैक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। देन द नेक्स्ट इज द एक्सेप्टिंग स्टेट। इट इज़ नॉट द फाइनल स्टेट, क्योंकि जो पीडीए हम बना रहे हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू वो बाय एम्प्टी स्टैक बना रहे हैं। ठीक है, so it will be the accepting state by empty stack, we can say. Okay, by empty stack. Then the next is transition function, और transition function को हमें इस तरह से डिफाइन करना है। So you can see बहुत इजी है। थैंक यू। और देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप पीडीए जनरेट करेंगे तो पीडीए कैसा जनरेट होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इनको डिफाइन किया है। यहाँ 7 टपल्स इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप पीडीए वगैरह बनाना चाहते हैं तो पीडीए भी आप इजीली डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द पीडीए, दैट वी कैन ऑल्सो जनरेट इट हियर। ओके, सो you can say the transition diagram to be represented here in this form as हमने जो ट्रांजिशंस लिखे हैं हमें उन ट्रांजिशंस को ही यहाँ पर डिफाइन कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, सो फॉर दिस जो हमारा पहला ट्रांजिशन है वो है Q0 स्टेट पर एप्सिलॉन के लिए Z0 एंड वी रीच द Q1 स्टेट। ओके, सो epsilon as the input, initially stack symbol is the stack symbol and हमारा जो ट्रांजिशन है वो कहाँ जा रहा है, Q1 स्टेट पर जा रहा है। और हमने क्या पुश किया है स्टैक में, स्टार्टिंग सिंबल। ओके, एंड देन द नेक्स्ट ट्रांजिशन इज वो है Q1 स्टेट पर ही है सारे के सारे। देख सकते हैं सारे Q1 स्टेट पर हैं, तो इन सबको हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस इतना देखते जाना है। पहला इनपुट एप्सिलॉन। ओके, सो 1 बाय 1 में यहाँ लिखते जा रहा हूँ एप्सिलॉन। ओके, स्टैक सिंबल इज S। अब आपको करना क्या है, Z0 इसको पुश करना है, फिर एप्सिलॉन S। ओके, स्टैक सिंबल एंड हमें उसको रिप्लेस कर देना है AS Z0। देन द थर्ड इज एप्सिलॉन अगेन, यानी कि जितने ये लिखे हैं सबको लिखना है आपको। ओके, सो एस अगेन द पॉसिबिलिटीज़, हम यहाँ पर उन सभी पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो सिंबॉलिकली हम इस तरह से इनको ट्रांजिशन फॉर्म में लिखेंगे। एस इट वॉज रिप्लेस बाय SSB। एक्चुअल में ये जो हम लिख रहे हैं ये पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं या रिप्लेसमेंट्स हैं, किसके लिए, इस सिंबल S के लिए। कि अगर स्टैक में S होगा तो आप उससे भी रिप्लेस कर सकते हो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, एज पर द रिक्वायरमेंट। एप्सिलॉन S इट वाज आल्सो रिप्लेस्ड बाय SBS Z0। ठीक है, तो ये जितने भी पॉसिबल थे ये सब हमने लिख लिए। इसके अलावा अब बचते हैं टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स के लिए हम लिखेंगे इफ इट इज़ अ टर्मिनल A
stack symbol is also A, so pop that element. If it is B pop that element. ओके, और Q1 स्टेट पर ही रहना है. फिर अगला जो है वो आखिरी ट्रांजिशन है जो कि हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं Q1 स्टेट पर ही, एंड दैट इज भी लाइक दिस. मैं आगे नहीं बना रहा हूँ, मैं नीचे ही बना रहा हूँ उसको, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं. ओके, सो द ट्रांजिशन इज एप्सिलॉन Z0 and we need to pop that Z0. Okay, और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सेप्टिंग स्टेट विच इज़ Q2. अब ये फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है. सो देख सकते हैं आप कि ये जो है ये ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, उस पीडीए का जो हम बना रहे हैं. थैंक यू.